Okay, so I'll quickly explain what is the concept of TDS. So we'll take one example so that it is better for you to understand. So let us say when ABC Limited is availing a professional service from CMA Sushi. So when he is billing them rupees 1 lakh, so that will be a professional fee for Mr. Sushi. So when it is a professional fee for Mr. Sushi, when ABC is going to remit amount to Sushil, what the company will do is company will check what is the bill amount, that is 1 lakh less they will deduct TDS 10,000, because for professional fee it is TDS under section 194, and the net amount which is paid to Mr. Sushil is 90,000. So here department is ensuring three things. One is once tax is deducted, every month on month basis, the tax will be deducted and deposited with the department. So it's a like immediate collection of taxes. One. Secondly, when we talk about uh, income determination, even if Sushil does not disclose what is his or what is his income, then it is obviously known to department because the information is supposed to be provided by ABC Limited to income tax department. And how this information will be provided? So for this purpose, department has made certain guidelines that the due dates of deduction of tax, then due dates of deposit of tax. So what are the due dates for deposit? Sir, 7, Yes. Whatever 7th of the every month. yeah, if we're talking about TDS for April, it has to be deposited by 7th of May. Huh? Likewise, every month you will be deducting and depositing. So once every quarter is complete, after completion of quarter, what department is required to do is department is required to uh, get a quarterly TDS return. That is for each quarter. So first quarter is April to June. So for this quarter, they are expecting return by 31st of July. So once the tax is deducted at these dates, by 7th of next month, immediately department is getting tax. That is one advantage. Second advantage is every quarter department is getting the information about for whom the tax is deducted. So for Sushil, tax is deducted, so his income is directly known to them. Thirdly, if the company is not deducting tax or not depositing tax, then there is interest and penalty also. So how much is the interest? We have seen that point. For non-deduction,
How much is the interest? 1% per month or part of the month. And second, for non-deposit. See, if you don't deduct, obviously that's a mistake. But if you deduct and not deposit, that means it's a cheating. That you are deducting tax. That means you are withholding someone's money and still not remitting with the tax department. So here the interest charged is more, 1.5% per month or part of the month. So that is how you are going to charge the interest. So department obviously collects interest also for non-deduction or delay in deposit. So that's an add-on income for the department. And if that expense means if the tax is not deducted for a specific expense, then department completely disallows that expenses. So if the expense is disallowed, so if it is a resident person, then how much expense is disallowed? 30%. 30%. And if the person is a non-resident person, then how much? 100. 100%. So here the income tax department is exercising win-win situation for them. So they are getting all the advantages. They are getting the advantage of quick collection of tax, quick collection of information, and then additional income in the form of interest. Right? And most importantly, no income evasion, because the person's income, even though Sushil does not disclose this income, automatically this will be known to tax department. All right. Now, when we talk about these compliances, obviously every month you will have to comply. So for every month this will continue. So I'm not repeating. Only thing is for the month of March, you know that there are certain provisions which are required to be created. And to create that provision, you need some buffer time. And that buffer time given is 30th of April. So till 30th of April, you can deduct tax because it's the last quarter, because year-end provisions has to be made. So department gives you a benefit. Likewise, for each of the quarter, you can say the quarter-wise TDS returns you will keep submitting July to September. This will be submitted by 31st of October. Likewise, October to December will be submitting by 31st of Jan. And then Jan to March, you will be submitting by 31st of May. Now it won't be April because the due date given for the month of March is 30th of April. So obviously उसके पहले तो हम लोग रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो उसके लिए टाइम दिया है 31st of May तक. तो इस दिन तक आपको क्या करना है, क्वार्टरली आपका TDS रिटर्न सबमिट कर देना है. And once that return is submitted, department cross verifies the TDS which is applicable to another party. All right. You want to note this down, or if you remember, if you know this, then we can go to previous PDF. सर लिहून घेतात ना सर. सर हा सर. सर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का क्या बोला सर, मेरा आवाज ब्रेक हो गया था सर. बिजनेस में हमने सीखा ना, रेसिडेंट को पे किया, सुशील रेसिडेंट है एंड एबीसी ने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो 30% डिसअलाउंस हो. एंड अगर सुशील नॉन रेसिडेंट है तो पूरा 100% डिसअलाउंस. अरे हाँ बराबर. Obviously, this tax will be deducted by whom? Employer. By employer, no? And on which income? Salary. Deducted on income from salary and other income disclosed
Separately. Other income declared by the company, declared by the employer. Now, those who are working must be aware that every year employer gets a written submission in Form 12BA stating that what is your other source of income and what are the deductions which you want to claim under the Chapter 6A. So that written information is taken from the employee, and based on that information, the tax is deducted by the employer. But remember, if the employer is aware about how much is your other income, but if you have not declared, then it is not employer's responsibility to deduct tax on that, because it is completely sole discretion of the employee to disclose that other income or not to disclose that other income. So it is not sufficient that employer is aware. What is necessary is employee should declare that the employee is having certain other source of income also. So that point has to be remembered, and they can ask you a question on this, that employer was aware about the income of the SSC, but the employee did not disclose, and later on tax was not deducted. Now, subsequently, if income tax department is taking action against you, then who is responsible for this? Is employer responsible for non-deduction of TDS? No, sir. No, because here the employee did not declare, and if the employee did not declare, it is not the responsibility of the employer to use that known information for deducting tax. Whatever is declared, that should be considered as a final. Thirdly, here but one more thing, if the employee discloses other information, like if the employee discloses his other heads of income, then it is responsibility of employer to deduct tax at source on salary as well as other income. So दोनों income पे tax cut करना पड़ेगा. Then benefit of Chapter 6A is given. Unlike this, unlike TDS on salary, for rest of the payments, they don't even consider that whether you have invested, whether you're not invested, are you planning to invest. They will not consider anything. They will just deduct tax at source and then they will complete. So here the employer takes into consideration that if at all you have got any investments, if there is any deduction which should be given, and वो consider करने के बाद employer क्या करता है, जब भी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करेगा एम्प्लॉय का, तभी वो चैप्टर 6 से डिडक्शन भी कंसिडर करेगा. करेक्ट. अभी ये टीडीएस जो होगा, यूजुअली इट इज ऑन मंथली बेसिस. Some companies they do it on, like for government companies there is an option that they can deduct tax at source at the last month, but for last month it becomes risky because it may happen that पूरे साल में आपने टैक्स कट नहीं किया and सिर्फ लास्ट महीने में किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनकम कम है एंड टीडीएस ज्यादा है. तो वो रिस्क अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मंथ ऑन मंथ बेसिस टैक्स कट करना पड़ेगा. Secondly, if employee is declaring something, he has to establish the proof. So ये जो हम लोग चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं, वहां पे प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा. अगर एम्प्लॉय ने प्रूफ नहीं दिया एंड फिर भी एम्प्लॉयर ने उसका बेनिफिट दिया, तो देन एम्प्लॉयर इज कंसिडर्ड एट फॉल्ट, बिकॉज एम्प्लॉय तो कुछ भी क्लेम कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो चेक करने का. तो इसके लिए डिपार्टमेंट हैज टू कंसिडर, डिपार्टमेंट हैज you can say mandated employers to verify the documents, and based on that chapter 6 deduction should be given. It may be ATC investments, it may be medical insurance, it may be educational loan repayment, it may be any other deduction, but the employer has to
obtain proof for each of those deductions, and if that proof is there, then you can consider that you are then you can consider that the deduction is employee is eligible for a specific deduction. All right. Okay. In case employee is working under two employers, then क्या होगा? दोनों टैक्स कट करेंगे क्या उस केस में? Yes, sir. No. दोनों नहीं करेंगे. No. Employee has to select. दोनों अलग अलग टाइम पे रहेगा ना सर? क्या हुआ? दोनों मतलब दो एम्प्लॉयर्स अलग अलग टाइम पे रहेंगे ना साल में? नहीं. एक ही टाइम पे. हाँ, दो अलग अलग एम्प्लॉयर है तो बात अलग, मतलब दो अलग अलग टाइम में तो बात अलग है, दोनों को कट करना पड़ेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन वेयर एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग ऑन द टू. हाँ. Then employee has to select one of them for TDS. मतलब सी क्योंकि कैसे होता है, एम्प्लॉयर टैक्स कट करेगा ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब टीडीएस रेट क्या रहेगा? सैलरी का स्लैब. क्योंकि एम्प्लॉय तो इंडिविजुअली रहेगा, कोई कंपनी या फर्म तो एम्प्लॉय नहीं हो सकता. तो जहाँ पे इंडिविजुअल एम्प्लॉय है तो उसका टैक्स किस रेट से होता है? स्लैब वाइज रेट से होता है. इसके लिए डिपार्टमेंट ने पॉइंट रखा है दैट यहाँ पे एम्प्लॉयर को जब भी टीडीएस कट मतलब टैक्स कट करना है तो वो स्लैब वाइज हिसाब से करेगा. अभी आप इमेजिन करो दो एम्प्लॉयर के पास वो साथ में है, तो एक जगह पे उसको 3 लाख सैलरी एंड दूसरे जगह पे उसको 2 लाख सैलरी, सॉरी 3 लाख सैलरी है दोनों जगह पे सपोज. तो कोई भी एम्प्लॉयर टीडीएस कट करेगा क्या? नहीं सर. नहीं करेगा. 3 लाख मतलब उसका टैक्स कितना आता है? इंडिविजुअल एम्प्लॉयर का 0 आता है. तो दोनों टैक्स कट नहीं करेंगे, जबकि उसका एक्चुअल टैक्स कितना आएगा? लगभग 32,500 प्लस सेस, इतना उसका टैक्स डिडक्शन होने वाला है. तो इसके लिए एम्प्लॉय हैज टू चूज वन ऑफ देम एज द यू कैन से पर्सन हु विल बी डिडक्टिंग टैक्स. सेकेंडली, जैसे वैभव बोल रहा था कि दो अलग अलग एम्प्लॉयर अलग अलग टाइम, लाइक मैं पहले 3 महीने एक कंपनी में था, फिर कंपनी छोड़ दिया, दूसरे कंपनी में गया. तो when I go to next company, it is my duty to inform the next company about my past record. Like मैंने past job में कितना earn किया है, वो उनको मुझे submit करना पड़ेगा. तो वो अगर information मैंने submit किया, तो उस basis पे नया employer क्या करेगा? Tax cut करेगा. Sorry, and अगर आपने ये नहीं किया, तो बाद में problem हो सकता है, क्योंकि tax deduction नहीं होगा. मैं आपको live example देता हूँ. Last year I filed 2 returns, जहाँ पे सेम प्रॉब्लम था. एम्प्लॉय ने जॉब चेंज कर दिया एंड जॉब चेंज करने के बाद उसने ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स मतलब सॉरी एम्प्लॉयर को इंटीमेट ही नहीं किया दैट आई वाज वर्किंग अंडर सो एंड सो कंपनी. एंड उसके वजह से प्रॉब्लम ये हुआ दैट दे वर वर्किंग, वन वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसका तो लगभग 5 महीने बाद उसने एक जॉब छोड़ा, तभी उसको कुछ 5 लाख या समथिंग ऑड अमाउंट मिला. एंड दूसरे एम्प्लॉयर से उसको कुछ 7-7.5 लाख था. तो कुल मिला के उसका 10 लाख के ऊपर गया बराबर. तो टैक्स डिडक्शन करते वक्त दोनों ने क्या किया? स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसिडर किया. हाँ बराबर, लेकिन मिलेगा ही. दोनों ने स्लैब वाइज टैक्स रूल्स अप्लाई किया, जो मतलब
up to 2.5 lakh nil, 2.5 to 5 lakh 5% and then 20%. हाँ तो सर, तभी ये बंदे का इनकम 10 लाख के ऊपर गया, 12 लाख समथिंग आया, तो एक तो डिडक्शन एक बार मिला, स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरी बात टैक्स का रेट जो था वो 10 लाख के ऊपर 30% है, जो कि कुछ हुआ ही नहीं दोनों एम्प्लॉयर से। हाँ, तीसरी बात, जब भी हम लोग स्लैब वाइज कंसिडर करते तो सेम स्लैब में डबल हुआ, डबल एग्जम्पशन मिला। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2 बार मिल गया, 2.5 टू 5 लाख 2 बार मिल गया, तो इसके वजह से उसका टैक्स बहुत कम है। एंड देन जब भी वो फाइनल कंप्यूटेशन करने गया तो उसको ज्यादा अमाउंट आ रहा था। हाँ? तो आफ्टर दैट देन obviously is there any option to reduce the tax liability? नो सर, No, for salaried employees there is no option to reduce the tax liability because दोनों एम्प्लॉयर इनकम टैक्स को इंटीमेट करेंगे, भले आप चाहे या ना चाहे, इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन बता देंगे दैट मैंने इतना सैलरी पे किया। एंड यू वोंट बिलीव, इसके वजह से उसको अराउंड 70,000 का टैक्स भरना पड़ा। हाँ सर, हाँ, एंड वो भी जबकि वो मंथ ऑन मंथ बेसिस हो जाना चाहिए, देन प्लस इंटरेस्ट है 234 एबीसी का, सॉरी ए नहीं, बी एंड सी का इंटरेस्ट है, क्योंकि 10,000 के ऊपर चला गया ना। तो इसके लिए यू हैव टू बी केयरफुल दैट व्हेन यू चेंज द जॉब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन इंटीमेट, सॉरी दूसरे एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन इंटीमेट कर दो। एंड अगर इंटीमेट नहीं करना है तो बी रेडी, आपको टैक्स वापस भरना पड़ेगा बिकॉज डिपार्टमेंट तो आपसे कलेक्ट करेगा ही। एंड आई हैव सीन इन वन ऑफ द केसेस वेरी इंटेलिजेंट पर्सन and they feel that income tax को कुछ समझता नहीं है, and they filed, means he was working under 2 employers, he did not come to me directly, he filed his return and then notice our departments and then he approached, and that time what happened, 2 एम्प्लॉयर के पास जॉब किया था, रिटर्न उसने फाइल किया कैसे, एक ही अभी उसको समझा ना, जब भी रिटर्न ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं तो 2 इन्फॉर्मेशन डाल दिया आपने, वो तो ऑटोमेटिक आ जाता है बराबर। तो उसने क्या किया, वो एक इन्फॉर्मेशन हटा दिया, अभी हटा दिया तो टैक्स आएगा नहीं, एंड उसको लगा कि इनकम टैक्स को क्या पता चलेगा, एंड उसने फाइल कर दिया रिटर्न। नोटिस आया कि आपका ये एम्प्लॉयर से भी इनकम है, आपने इनकम टैक्स मतलब दिखाया नहीं है, तो आप रिवाइज कर दो रिटर्न। तो देन देयर इज नो ऑप्शन ना, वंस दिस हैपेंस देन अल्टीमेटली क्या हुआ, इंटरेस्ट का पीरियड बढ़ गया, कि जो वो जुलाई के पहले ही वो रिटर्न फाइल करने के टाइम ही अगर वो दिखा था तो उसको इंटरेस्ट भरना था। अभी ये इनकम टैक्स का नोटिस आने के बाद भी उल्टा क्या हुआ, अप्रैल से लेके जब भी नोटिस आया तब तक उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। एंड यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग हियर और यू कैन नॉट मैनिपुलेट एनीथिंग हियर बिकॉज एवरीथिंग इज नोन टू टैक्स डिपार्टमेंट। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग दीज काइंड ऑफ सिचुएशन। एक तो आप खुद टैक्स भर दो, वरना एम्प्लॉयर को इनकम डिस्क्लोज करो। एंड इसमें कुछ वे आउट नहीं रहता। like I lost one of my SSCs also because of this, then उसका टैक्स और ज्यादा आ रहा था, लगभग 90,000 आ रहा था, तो वो फर्स्ट टाइम ही आया था बिकॉज सिंगल रहेगा तो इट इज इजी फॉर यू टू फाइल द रिटर्न्स, बट ये ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो पीपल अप्रोच कंसल्टेंट्स। तो मैंने उसको बता दिया कि लगभग 90,000 कुछ टैक्स आएगा, तो ही सेड कि नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। आई सेड ओके यू रेफर अदर पीपल, and then he referred, and then that person also suggested him the same thing. So that is the case कि सैलरी में आप कुछ गड़बड़ या मतलब टैक्स सेविंग कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज डिस्क्लोज्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो वहां पे आप कुछ मतलब आप अगर बोलोगे कि ये गलत है तो दैट मीन्स यू आर क्वेश्चनिंग योर एम्प्लॉयर, एंड विच विल बी बेटर देन सॉरी विच विल बी वर्स देन पेइंग टैक्सेस। बिकॉज अगर आप एम्प्लॉयर के अगेंस्ट गए तो एम्प्लॉयर तो आपकी बैंड बजा देगा ना बाद में। सर लेकिन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जाके भी क्या करेगा वो, तो मतलब क्या वही बोल रहा हूँ, इट इज बोलेगा? टेम्पररी सोल्यूशन ना, आप टेम्पररी बोलोगे, एम्प्लॉयर तो प्रूफ दिखा देगा। एम्प्लॉयर के अगेंस्ट मतलब यू विल से दैट मुझे इतना इनकम मिला था, एम्प्लॉयर का मिस्टेक है, दैट्स व्हाट अल्टीमेटली यू कैन क्लेम। अच्छा, बट इवन इफ यू क्लेम दैट तो नोटिस तो इसके बाद भले इनकम टैक्स इमीडिएटली एम्प्लॉयर के पास नहीं जाता, उसको पता है कि एसएससी का मिस्टेक है, बट अगर गया भी
बट फिर भी कंपनी तो खुद को आराम से बचा लेगा बिकॉज दे हैव गॉट ऑल रिकॉर्ड्स. हाँ ना सर, After वो तो this, your obviously job will be in trouble. Not directly, but chances है ना. सर ये आपने बोला सर उसने इंफॉर्मेशन डिलीट कर दिया, लेकिन सर इनकम टैक्स पे साइड पे जाएंगे तो ऐसा डिलीट कर सकते हैं क्या कुछ? वो मतलब नहीं, रिटर्न में डिलीट कर सकते हैं. 26 says में you can't change anything. You cannot हाँ। touch. You cannot touch anything there. नहीं ना, हम वही It is visible. So you are thinking about deleting. हम नहीं नहीं नहीं. ऐसा कैसे? उधर कुछ टच नहीं कर सकते. रिटर्न में आप कर सकते. फिर रिटर्न में ऑप्शन रहता है ना. हाँ, रिटर्न में ऑप्शन है, वो तो एडिटेबल है, वो एडिटेबल है पूरा। रिटर्न में किया उन्होंने. वो तो वैसे भी सर ऑटोमेटिक जनरेटेड एंड आता है देखो उसमें कैसे? वो क्यों रखा है डिलीट का ऑप्शन, बिकॉज आई हैव सीन इन अनदर केस कि जहां पे गलती से टीडीएस आया एक पर्सन का, मतलब आई वाज फाइलिंग रिटर्न फॉर अनदर पर्सन, उनका कुछ इंटरेस्ट का टीडीएस था. वो बोलते मेरा ये बैंक में अकाउंट ही नहीं है. फिर तो क्या होता है, गलती से पैन इस बंदे का डाल दिया ना, तो उसके नाम पे टीडीएस आएगा. अरे हाँ, अब तो बेनिफिट ले लेने का ना सर। इनकम दिखाना पड़ेगा ना पहले. अच्छा राजा. हाँ ना सर, रेंट देने का, फिर बाप रे, फिर क्या किया सर? यही तो सब लफड़ा है बीच में कि आप क्रेडिट ऐसे ही नहीं ले सकते. एंड बाद में हाँ। प्रॉब्लम ये होगा, आपने इनकम हाँ बोला एंड बाद में उन्होंने टीडीएस रिटर्न करेक्ट कर दिया, तो आपके 26 ईयर्स में से टीडीएस का क्रेडिट हट जाएगा, बट गया सर। इनकम आप हटा नहीं सकते बाद में, बिकॉज इनकम तो आपने डिस्क्लोज किया है ना. हाँ नहीं, अरे बाप रे, बहुत तो ध्यान जो देना इनकम अर्न ही नहीं किया उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा. Oh shit, बाप रे। तो ये नहीं करने का ऐसे कुछ. सर लेकिन ये टीडीएस में सर गवर्नमेंट बहुत सेफ गेम खेल रही है सर हर जगह पे। हाँ, बहुत safe है ये. कंप्लीटली इन देयर फेवर. एंड इसके लिए देखो सैलरी पर्सन का स्क्रूटिनी जनरली नहीं आता. उसका रीजन यही है, एम्प्लॉयर को उन्होंने पिन मार के रखा है ना कि कुछ भी किया तो एम्प्लॉयर को पकड़ लेगा. एम्प्लॉयर तो खुद के सर पे लेगा ही नहीं. एनीवन लाइक आपको भी बोला, आप इफ यू आर एम्प्लॉयर एंड यू थिंक दैट एम्प्लॉय का टैक्स बचाने के लिए आप खुद का बैंड बजा लोगे, नहीं सर, ऐसे कोई भी नहीं बजाएगा ना अननेसेसरी. सी एम्प्लॉय का नुकसान कितना होगा, वो मैक्सिमम 30% है टैक्स रेट, बराबर. हाँ सर। लेकिन कंपनी का स्टार्टिंग से ही टीडीएस मतलब स्टार्टिंग से इनकम का रेट 30% है ना. हाँ, तो कंपनी तो यही सोचेगा ना, तो उससे अच्छा तू बेयर कर ले बर्डन. बराबर। All right, so these points are clear. Yes sir. Okay, now as far as individual and HUF are concerned, they are required to deduct TDS only if their books of accounts are subject to audit. ये हमने 44 AD के AB के टाइम देखा था कि TDS किसको करना पड़ेगा. तो जो पर्सन टैक्स ऑडिट में आता है इंडिविजुअल एंड HUF, उसको भी TDS कट करना पड़ेगा. हाँ, बट अदर देन दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसको टैक्स ऑडिट नहीं है, while making the payment, sorry, they will not deduct the TDS. अच्छा हाँ। ये कट करने की बात हो रही है ना, जिसको हाँ हम मतलब डिडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग कि deductor, कंपनी हाँ। रहेगा तो उसको टैन ऑब्टेन करना ही पड़ता है, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्ट कट करना ही पड़ता है. बट अगर हम लोग इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करें तो उसमें मैंडेटरी किसको है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, and if their books of accounts are subject to audit, then they are required to deduct tax while making their official payment. Again official payment, personal payment पे TDS नहीं आएगा. For example, एक पर्सन है मिस्टर सूरज, हाँ, एंड उसका टैक्स ऑडिट आ गया एंड उसने ऑफिस का इंटीरियर करवा दिया एंड उसने इंटीरियर डिजाइनर को पे किया 50,000, वो टैक्स कट करेगा. लेकिन उसने घर का डिजाइन करवा लिया एंड उसके लिए उसने पेमेंट किया तो उधर टीडीएस कट नहीं होगा. उधर टीडीएस, हाँ सर, बिकॉज इट्स अ पर्सनल पेमेंट ना, उसका एंट्री बुक्स में नहीं आएगा. और सर कंपनी के केस में तो मतलब उसको करना ही पड़ेगा. कंपनी में तो पर्सनल प्राइवेट ऑफिशियल ऐसा कुछ है ही नहीं ना, सब ऑफिशियल ही है. हाँ सर बराबर.
तो इसलिए वो हर पेमेंट, उसको फिर टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है ना? नहीं, कंपनी को तो टैक्स कट करना पड़ता है, करने फर्म को। फॉर्म को भी। अच्छा, ठीक है। ऑलराइट। यस सर। अभी ये था टीडीएस ऑन सैलरी। तो टीडीएस ऑन सैलरी इज वन पार्ट। हाँ, ओके, देयर इज वन मोर लास्ट पॉइंट। यहाँ पे फॉर्म नंबर मतलब एम्प्लॉयर क्या करेगा, विल इशू फॉर्म नंबर 16 फॉर एज अ मैटर ऑफ प्रूफ कि मैंने टैक्स डिडक्ट किया। एंड इधर क्या होता है, फॉर्म नंबर 16A रहेगा। यहाँ पे डिडक्शन होगा at specified rates, which will not include surcharge and cess. लेकिन टीडीएस में सरचार्ज सेस एप्लीकेबल होगा अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर गया तो। तो वो भी हम लोग एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश बोल सकते हैं दोनों में। बाकी ये सब पेमेंट्स में एक्सेप्ट नॉन रेसिडेंट पेमेंट, बाकी कोई भी पेमेंट में हम लोग सरचार्ज सेस कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे चैप्टर 6 से डिडक्शन ऑब्वियसली कंसिडर नहीं होगा। कंपनी को काम मिलता है। If PAN is not provided, then tax is deducted at the rate specified in the section or 20%, whichever is higher. मतलब कोई लोग क्या करते हैं, टीडीएस कट ना हो इसके लिए पैन ही नहीं देते। पैन नहीं दिया तो उनको लगता है टीडीएस कट होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, फॉर अननोन पैन दे हैव टू डिडक्ट टैक्स एट 20%। दिस इज वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्यों? बिकॉज एक तो आपने पैन नहीं दिया तो टीडीएस कट होगा, 20% से होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका क्रेडिट आपको मिलेगा भी नहीं। अरे बाप रे। कैसे मिले? देखो, पैन ही नहीं दिया तो क्रेडिट कैसे लेंगे ना हम लोग। सर बाद में अगर टीडीएस रिटर्न रिवाइज किया सामने वाले ने तो? हाँ, बट उसने पैन प्रोवाइड किया तो ना। हाँ सर। हाँ, पैन प्रोवाइड किया ये तो डिडक्ट करने के बाद तो उसको करना ही पड़ेगा पैन प्रोवाइड ना। 20% भी डिडक्ट हो गया उसका। 20 इसके ये प्रोविजन क्यों लाया? बिकॉज बहुत सारे लोग यही करते थे कि पैन देने का ही नहीं, तो पैन नहीं दिया तो सवाल ही नहीं आता टीडीएस का। तो इनकम टैक्स उसके ऊपर एक स्टेप चला गया कि जिसने पैन दिया नहीं उसका 20% से कट होगा, एंड 20% से कट होगा तो नेचुरली मेरा बेनिफिट लूज होने से अच्छा मैं पैन प्रोवाइड कर दूं। वैसे भी कट होने ही वाला है, ज्यादा रेट से होने वाला है, उससे अच्छा मैं पैन प्रोवाइड करूं। इसके लिए लोगों ने क्या कर दिया, पैन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ऑलराइट, 26 AS में दिखता रहेगा ना सब पे? कैसे दिखेगा ना राजा? नहीं दिखता। अरे किसका बात कर रहे है तू? पैन का? ये पैन नहीं था वो। ये नहीं, ये 20%। हाँ, पैन नहीं दिया तभी।
अभी वैभव तू ही बोल, पैन दिया नहीं तो 26 में कैसे आएगा? फिर 20% कट, हाँ बराबर वही ना। फिर अगर रिवाइज किया तो फिर आ जाता है। रिवाइज किया तो आ जाता है, अच्छा तो सर बट देखो रिवाइज किया तो कंपनी ये नहीं करता बाद में, कंपनी 20% से कम नहीं करता, अच्छा क्योंकि देखो एक बार मैंने कट करके डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद आपने पैन दिया ना, हाँ तो मैंने तो डिपॉजिट कर दिया ना ऑलरेडी। वही ना, आप थोड़ी से मंगा के कम कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर फायदा क्या होता है सर रिवाइज करने का? नहीं, क्रेडिट मिलता है खुद को। अच्छा तो सपोज तुमने पैन नहीं दिया, यू आर सपोज प्रोफेशनल, 10% में टीडीएस कट करना था, तुमने पैन नहीं दिया तो मैंने 20% कट करे। हाँ, पैन में तुमने पैन दिया तो देखो, अगर मैंने डिपॉजिट करने के पहले तुमने पैन दिया तो अलग बात। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो अभी वैभव ने पैन दिया तो मैं 10% से कट ही किया है ना, हाँ तो मैं हाँ डिपॉजिट करते वक्त सिर्फ 10% के हिसाब से डिपॉजिट कर दूं, तो दैट टाइम इट इज इजी। बट सपोज मैंने डिपॉजिट कर दिया एंड उसके बाद तुम आए and बोले नहीं नहीं मुझे पैन प्रोवाइड करना है, तो मैं बोलूंगा ठीक है आप क्रेडिट ले लो उसका, हाँ, तो फिर मैं रिटर्न रिवाइज कर दूंगा एंड उधर आपका नाम डाल दूंगा, अच्छा। यू टेक द क्रेडिट। नहीं सर, लेकिन 20% ही रहेगा हाँ, पूरा मैं चेंज पूरा का कैसे पूरा। करूँ ना, अभी वो मैंने चेंज तो डिपॉजिट नहीं कर होगा दिया सर, ना ऑलरेडी, डिपॉजिट कर दिया, पैसा दे दिया गवर्नमेंट। समझा है प्रश्न? समझा ना? इतना हाँ। सर ये चैप्टर 6 डिडक्शन नॉट कंसीडर्ड, सर ये क्यों लिखा है सर ऐसा? उधर कंसिडर देखो, मैं सपोज अभी वैभव का एग्जाम्पल, मैं वैभव को पे कर रहा हूँ 60,000 सपोज, हाँ तो हाँ मैं उसको पूछूंगा ही नहीं ना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या है, मेडिक्लेम लिया कि नहीं, हाँ सर, वो कुछ लेना देना, हाँ मतलब वो नहीं लेना कर। देना ही नहीं है ना, बिकॉज सी देयर आर सो मेनी पार्टीज। एम्प्लॉयर का कैसे होता है, एम्प्लॉयर एक होता है एंड ये सब पेमेंट्स बहुत सारा होता है, हाँ बराबर, तो वो तो हर एक जन feasible- तो ये सब कंसिडर नहीं कर सकता ना, डुप्लीकेशन होगा। हाँ नहीं कर सकते, कर तो नहीं सकते। हम्म। फिर सर एम्प्लॉय के केस में पॉसिबल होता है क्या? हाँ देखो, अरे आप एक ही जगह पे काम करोगे ना जनरली, या दो जगह पे, आप ऐसे 15-20 जगह पे तो काम नहीं कर सकते, नहीं नहीं, हाँ तो उस केस में एम्प्लॉयर को आपका सब इनकम पता है, हाँ यस ऑब्वियस, हाँ देन एम्प्लॉयर आपका टोटल इनकम पे टैक्स कट करने वाले, हाँ हाँ बराबर, यस सर, खत्म बात। हाँ बराबर। एंड देखो इससे इनकम टैक्स को क्या इंश्योर करना है, खुद का काम हल्का करना है। एम्प्लॉयर ने आपका पूरा इनकम कैलकुलेट कर दिया, टैक्स कट कर लिया, डिपॉजिट कर दिया, सब हो गया, हाँ यार, हाँ बराबर। उसके बाद तुम रिटर्न फाइल करो नहीं करो, इनकम टैक्स कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंपल्शन है दैट यू हैव टू फाइल रिटर्न, बट मेनली क्या टैक्स आ गया ना, जमा हो गया, एंड कुछ गलती हुआ तो मैं एम्प्लॉयर को ही पकड़ने वाला हूँ। बराबर सही है सर। तो दैट इज देयर होल आइडिया कि यहाँ से इनकम टैक्स का काम बहुत आसान हो गया टीडीएस ऑन सैलरी लाने के। ये जो पैन ने प्रोवाइड किया, उसके बाद उसको 20% का ही पूरा क्रेडिट मिलेगा क्या? 10% ही मिलेगा प्रोफेशनल को? 20% जितना कट किया उतना मिलेगा, उसमें कुछ ये नहीं है, सिर्फ 20 ज्यादा से कट हो गया ना अननेसेसरी, हाँ। उसके हाथ में कैश कम हो गया, एंड डिपार्टमेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज डिपार्टमेंट को तो पैसा मिल गया। हाँ ना सर। अभी ये तो मैंने प्रोफेशनल बोला, वो अलग बात, अगर वैभव कॉन्ट्रैक्टर होता तो मैं 1% से ही कट करना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड? एंड फिर सीधा 20% से हो, हॉरिबल ना। हाँ सर। हाँ नहीं सर, यहाँ पे गवर्नमेंट को देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्या अपना फिर से रिटर्न? हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक साल तो वो यूज कर लेता है ना। हाँ रिफंड जल्द से जल्द भी कभी मिल सकता है, ईयर खत्म होने के बाद आप रिटर्न फाइल करोगे तभी, ओके के बीच में नहीं। ओके, मतलब यूटिलाइज होगा सर अपना, मतलब 20% गवर्नमेंट के खाते में। हाँ, बराबर। एंड देखो इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक आइडिया किया है, पैन इज नॉट प्रेजेंट, टैक्स इज डिडक्टेड एट रेट स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। द सेक्शन मतलब जो सेक्शन में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो, यस और 20% विचेवर इज हायर। नहीं तो लोग लॉटरी वाले क्या करेंगे, लॉटरी वाले में पैन देता ही नहीं, कर दो 20% से टीडीएस, अच्छा हाँ नहीं अरे 30% है उसके लिए ना। तो हाँ उसके सर, लिए 30% 30% है। विचेवर इज हायर।
हाँ वो हाँ 30% सर। के ब्रैकेट में। अरे ये बहुत दिमाग लगाया सर उसने। ओके सर, इसके लिए सेक्शन भी लिखा है इन्होंने आगे। हम्म। ओ अरे वाह, होशियार है ये। हाँ। सेक्शन मतलब मैं हाँ स्पेसिफाई करता हूँ इन द पेमेंट सेक्शन। सर ये अभी जो एग्जांपल दिया उसमें तो 30% ही आएगा ना, मतलब 30% और लॉट 20% यस विच वर इज लॉटरी पर लॉटरी वगैरह रहेगा, क्रॉसवर्ड पजल्स, उसमें 20% और 30% विचेवर इज हाई, तो तो फिर 30% चांदी से हो कट। जाएगा, वो बोलेगा काट ले भाई 20% तो जा। लेकिन फिर सर अगर काटने भी बोला तो उसको फिर ईयर एंड में नहीं मिलेगा ना, ये नहीं क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो फिर तकलीफ 30% कटवाने से क्रेडिट लेने से इससे बेकार है ना वो कि हाँ वो 20% तो कटवा दिया see, और नहीं मिला क्रेडिट। ये तो हानिकारक ही है, बिकॉज देन इट इज वेस्टेज ना, ना एम्प्लॉयर को फायदा है ना आपको फायदा। तो वही मतलब, हाँ वही, किसी को फायदा नहीं है। सर मुझे Employer- वो बताइए ना कि कभी कभी लोग पैन नंबर एक से ज्यादा क्यों निकालते थे अर्लियर। पहले निकालते थे, अभी नहीं निकालते, क्योंकि पहले हाँ वो सर। क्या करते थे, अलग जगह पे अलग अलग पैन देते थे। जब तक आपका डेटा एक साथ नहीं आता समझेगा ही नहीं ना आपका इनकम कितना है। And some people go to even to that extent where they used to file 2 returns for 2 PAN. फिर डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया उसके लिए पेनल्टी है। हाँ तो अभी तो पेनल्टी है। हाँ पेनल्टी है। आधार लिंकिंग का दूसरा रीजन ये है कि जो फेक पैन्स है ना वो सब चला मतलब वो ये चीटिंग का ये आपका आवाज कट गया था। लोग ऐसे क्यों। ऐसा क्यों समझ आया मेरे को, बाकी हाँ ये आवाज कट रहा है। रिया आवाज कर दिया। आप टाइप कर दो चाहिए। हाँ सर ये विथ रेफरेंस टू टाइप ऑफ पेमेंट मींस क्या सर यहाँ पे? देखो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, अभी बहुत सारे सेक्शन है, ऑलमोस्ट 20-25 सेक्शन है, तो मैं ऐसा हर एक का नहीं लिख सकता। बरोबर। हाँ कॉन्ट्रैक्टर है तो 1% फॉर इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट है तो 2%, इंटरेस्ट है तो 5%, डिबेंचर है तो 10%, हाँ रेंट है तो वापस ऐसे ही 2%, 1% एंड 10%। तो ऐसे हर एक सेक्शन में अलग अलग है ना, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेमेंट फिर ये डिसाइड। लेकिन सर अभी जो लॉटरी का एग्जांपल दिया उसमें तो हम लोग ओके वो भी इसमें ही आ गया बराबर, विथ रेफरेंस टू टाइप ऑफ पेमेंट में ही आ गया बराबर। हाँ बराबर। सर लिख ले क्या सर? सर ये जो बाकी दूसरे जो इनकम है कॉन्ट्रैक्टर का, वो सब का तो डिडक्टेबल इनकम है ना वो सब, तो जितने सेल्स अमाउंट पे अगर करेगा टीडीएस तो उसको बाद में एक्सपेंस का बेनिफिट मतलब वो मिलेगा ना, मतलब मिलेगा एक्सपेंस का बेनिफिट। इसके लिए देखो रेट कम रखा है ना, प्रोफेशनल का इनकम सॉरी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो इज मोर, 40-50% आपका नेट प्रॉफिट रेशियो रहता है बराबर। तो उसके लिए टीडीएस रेट वहां पे 10%, एंड कॉन्ट्रैक्टर के केस में कैसे होता है उनका प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है बहुत, इसके लिए उधर टीडीएस रेट कम। लॉटरी में तो आपने कुछ किया ही नहीं खर्चा, हाँ वो तो एक्सेप्ट परचेसिंग टिकट्स, उसका तो इसके लिए वहां पे टीडीएस रेट ज्यादा। एक्सपेंस उसमें। आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दीस पॉइंट्स? यस यस। सर वैसे भी ग्रॉस लेते हैं, इसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या टीडीएस का, क्योंकि इनकम अपन ग्रॉस लेते हैं कंप्यूट करने के टाइम पे, यस यस और बाद में टीडीएस का बेनिफिट ले भी लेते हैं। यस, बट अगर ज्यादा हो भी गया तो भी यू कैन क्लेम रिफंड है ना। हाँ यस। चलो हो गया लिख के? लिख के हो गया? नहीं सर। स्टार्ट किधर? हाँ ठीक है, तो आप लिख लो, फिर हम लोग एक्चुअल सेक्शंस के पास जाते हैं कि हर एक सेक्शन में कितना टीडीएस कौन से रेट से होगा,
एंड उसके सम्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर। At the time of payment where the estimated yearly income exceeds the tax-free limit. Tax-free limit मतलब basic exemption limit. मेरा काफी बड़ा सिटी है, भेजते हैं। Then on the average rates on the basis of tax rates of individual, ये सिर्फ कट कर दो, ये गलती से वो कुछ आया है। If no valid PAN is provided 30%। अब यहाँ पे 30% क्यों? Because इंडिविजुअल को मैक्सिमम टैक्स रेट कितना लगता है? 30% लगता है। तो इसके लिए अगर आपने पैन प्रोवाइड नहीं किया तो सीधा 30% से TDS होगा। Then you have next section 192A। 192A सेक्शन में TDS कभी होगा? When payment of accumulated balance due to EPF to employees which is taxable in the hands। अभी ये कभी होगा? तो when the amount of payment exceeds 50,000। अभी देखो हर एक सेक्शन में आपको ये याद रखना है कि कितना पेमेंट एक्सीड हो रहा है। मतलब किस अमाउंट के ऊपर जाएगा तो टैक्स कट करना है। तो यहाँ पे वो अमाउंट कितना है? 50,000। तो जैसे आपका अमाउंट 50 के ऊपर जाएगा उधर आपको टैक्स कट करना पड़ेगा। एंड TDS का रेट कितना रहेगा? 10% ऑब्वियसली, एंड इफ पैन इज नॉट वैलिड देन 30%। सिंपल। सर अभी सर यस सर अगर मीन्स मेरा ये PF का बैलेंस 25,000 के ऊपर चला गया, हाँ, तो मेरा कट करेगा क्या? 50। उसके लिए कंडीशन है 5 साल के बाद अगर आपने विड्रॉ किया तो कट नहीं होगा, 5 साल के पहले विड्रॉ किया तो कट होगा। और सर उसका बेनिफिट मिलेगा ना, मतलब वो रिटर्न तो मिलेगा ना जब रिटर्न भरूंगा तो? नहीं, वो तो टैक्सेबल होगा ना, इट डिपेंड्स, लाइक RPF है, SPF है, नहीं लेकिन सर, हाँ आपलं रिटर्न साधं प्रोव्हिडंट फंड सर, साधं ते आपलं कट SPF करतात ना। हाँ। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट वो मिलेगा। हाँ सर। हाँ ओके, लेकिन देखो आप यूजुअली 5 साल के पहले तो जॉब, मतलब 5 साल के पहले तो उसको विड्रॉ नहीं करोगे तो आपको TDS नहीं आए, ये सर 5 कंडीशन साल है के ना, पहले विड्रॉ होगा इसके लिए पूछ रहा हूँ। इसके लिए कट हो रहा है। ओके, तो विड्रॉ मत करो, ट्रांसफर कर दो बैलेंस। अरे हाँ हाँ, ऑप्शन आहे ना आपल्याकडे। That option is there ना, why you unnecessarily withdraw the amount, you transfer it to next employer। and अभी तो ऑनलाइन होने की वजह से आपका अकाउंट नंबर तो वही रहेगा। हाँ, only yes, thing is you have to give that number to the next employer, that's it। yes, right sir। okay, if though he has not rendered such continuous service, the service shall be terminated because of employee's ill health or by the contraction or discontinuance of employee's business or other reason beyond employee's control। मतलब ये 5 साल का सर्विस नहीं हुआ फिर भी टैक्स कट नहीं होगा कभी, अगर एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ा ड्यू टू हिज इल हेल्थ, मतलब कुछ फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है या हेल्थ वाइज इशू है एंड आपने जॉब छोड़ दिया तो टैक्स कट नहीं हो, बट देन यू हैव टू गिव मेडिकल सर्टिफिकेट। और बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, कभी कभी एम्प्लॉयर ही बिजनेस कम करते जाता है एंड वो क्या बोलता है कि certain employees are not required, तो स्टाफ रिडक्शन में अगर एम्प्लॉय को निकाल दिया एंड उसका सर्विस 5 साल से कम हुआ है तो वहां पे टैक्स कट नहीं हो। थर्डली, बियॉन्ड एनी रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है उनका ऑफिस शिफ्ट कर दे, तो सपोज आपका ऑफिस शिफ्ट कर दिया महाराष्ट्र से सीधा तमिलनाडु में एंड मे बी यू आर नॉट रेडी टू मूव विथ योर फैमिली, or there is no possibility for you that you can shift to other state considering your family situation, so in that case आपको क्या करना पड़ेगा,
वो इंटीमेशन आपके एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा एंड फिर एम्प्लॉयर उसके ऊपर टैक्स कट नहीं करेगा. If on the cessation of his employment, the employee obtains employment with any other employer to the extent of accumulated balance due and becoming payable to him is transferred to individual account in any recognized provident fund maintained by such employer. तो अगर एम्प्लॉय ने, जैसे मैंने अभी बोला, बैलेंस ट्रांसफर कर दो दूसरे जगह पे, तो वहां पे टैक्स कट नहीं होगा. तो आप ट्रांसफरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन. सेम टू सेम फंड है, एसपीएफ है, तो प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू रखो. अगर आरपीएफ में कन्वर्ट हो रहा है या कुछ चेंज हो रहा है उसमें, एसपीएफ का आरपीएफ का एसपीएफ, तो उस केस में जस्ट दैट यू ट्रांसफर बैलेंस टू द नेक्स्ट एम्प्लॉयर एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. एंड अगर वो हुआ तो टैक्स कट नहीं करना पड़ेगा. Alright. वो सब ज्यादा रीजन बताना पड़ेगा ना सर, Yes. ऐसे जो हुआ वो. Yes. और सर अगर अभी कट कर लिया उसमें और मेरा इनकम टैक्सेबल नहीं होता है तो Refund. फिर रिफंड. अच्छा, रिफंड इसका. देखो, टीडीएस ये एक पार्ट है एंड आपको आपका एक्चुअल इनकम टैक्स इज डिफरेंट थिंग. डोंट मिंगल बोथ द थिंग्स. टैक्स कट करने के लिए ये रेट प्रिस्क्राइब. अभी जो एम्प्लॉय रिटायर हो गया उसका टोटल इनकम 4 लाख भी हो सकता है साल का, एंड उसका इनकम 12 लाख भी हो सकता है. तो अगर उसका इनकम 12 लाख है तो जो पीएफ का बैलेंस मिलेगा वो 30% से टैक्स होगा. तो उसको एक्स्ट्रा खुद के पॉकेट से टैक्स भरना पड़ेगा. एग्जैक्टली वही टीडीएस. तो अगर उसका इनकम 4 लाख है तो जो कट हुआ है वो रिफंड आ जाए. तो 10% कट हुआ है वो वापस आ जाएगा. ऑलराइट. अरे सर, इसमें सर एक केस पूछना था मुझे सर. सर अभी समझिए, अभी कोई भी बंदा किसी जॉब पे है, उसको सर जॉब छोड़ना है 1-2 महीने के लिए. मतलब वो पूरा निकल जाएगा वहां से, वो 2 महीने के लिए जॉब छोड़ देगा, लेकिन उसको जो पीएफ है सर विड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि वो फिर से तो 2 महीने बाद दूसरी जगह पे लग जाएगा. उस केस में सर क्या कर सकते हैं? उस केस में फॉर्म भरने का नहीं, विड्रॉल का. आप जब भी जॉब छोड़ते हो तो फॉर्म में मेंशन करते, डू यू वांट टू विड्रॉ पीएफ, तो नो लिख. ऐसा चलता है सर? यस. एंड देन यू से दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस बैलेंस टू नेक्स्ट एम्प्लॉयर. नहीं सर, हम लोग तो पूरा बैलेंस पीएफ में सेफ रख सकते हैं कुछ किए बिना. हाँ, अनरिकॉग्नाइज्ड है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता. अनरिकॉग्नाइज्ड है तो इट्स गुड टू टेक एंड गो. सर अपना जो कंपनी डिडक्ट करता है वो तो पीएफ रिकॉग्नाइज ही होता है ना? हाँ, वो रिकॉग्नाइज ही होगा. मैं सिर्फ टैक्स एंगल से बता. अगर अनरिकॉग्नाइज है देन वहां पे टीडीएस का पॉइंट भी नहीं आएगा. आया ना सर, 50,000 के ऊपर गए तो भरना पड़ेगा ना? नहीं, अनरिकॉग्नाइज में नहीं आए. हाँ. क्योंकि ऑलरेडी इतना टैक्स है उसमें, तो बात है वैसे. हाँ, सॉरी, अनरिकॉग्नाइज में नहीं आएगी. रिटायरमेंट के टाइम तो टैक्सेबल ही होता है ना, तो आप कुछ कट कर ही नहीं सकते, उधर आपको भरना ही है. हाँ, भले आपका एग्जम्प्ट हो रहा हो फिर भी ना. एसपीएफ में प्रॉब्लम क्या है, रिटायरमेंट के बाद, मतलब जब भी हम लोग मैच्योरिटी के बाद विड्रॉ करते हैं 60 इयर्स के बाद, तभी एग्जम्प्ट रहता है ना. वैसे अनरिकॉग्नाइज में नहीं. अनरिकॉग्नाइज का रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट मिलता है वो टैक्सेबल होता है. और रिटायरमेंट नहीं हुआ, 60 साल नहीं हुआ, सिर्फ 5 साल ही हुआ किसी एम्प्लॉय की जगह पे, और तब मिल रहा हो तो मतलब मैंने कहीं पे 5 साल काम किया और मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, तो भी तो एसपीएफ. मैच्योरिटी में आएगा ही नहीं. इट इज वॉलेंटरी विड्रॉल उसको बोलते. मैच्योरिटी कैसे होगा? तू रिटायर, कोई पर्सन रिटायर नहीं होगा या जॉब नहीं छोड़ेगा तो मैच्योरिटी आएगा ही नहीं. हाँ, मैच्योरिटी वो वॉलेंटरी विड्रॉल है. उस केस में टीडीएस हो. अच्छा, उस केस में होगा. एसपीएफ हो तो भी सर? यस. अच्छा, हाँ. फिर बाद में आप टैक्स रिटर्न फाइल करके जो करना है आप आगे आपका काम. सी, डिपार्टमेंट को इंश्योर करना है कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट के पास ये पैसा रहे, बस. ओके. अच्छा, सीधी बात है ना. पैसा पीएफ किसी एसपीएफ का पैसा गवर्नमेंट के पास डिडक्ट हो, तो आप विड्रॉ करके 2 महीने में आ गए लेने, तो मेरा सब
इन्वेस्टमेंट प्लान चौपट हो गया ना। सर ऐसा होता है क्या, मतलब कंपनी को थोड़ा प्रॉब्लम होता है मतलब एसपीएफ में जाने से या वो करवाने में, रजिस्टर्ड करवाने में, ऐसा होता है क्या एसपीएफ थोड़ा? कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ कंप्लायंस पार्ट पड़ता है। अच्छा एसपीएफ का, इसलिए वो आरपीएफ प्रीफर करते हैं, और अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब होगा ही नहीं कंप्लायंस, इसलिए वो उधर जाता रहेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड जनरली नहीं रखते अनलेस देयर इज सम प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको मेरे कंपनी का बताया था। तो अनलेस देयर इज प्रॉब्लम नो वन वुड लाइक टू स्टे इन अनरिकॉग्नाइज्ड। हाँ समझा। अंडरस्टूड टिल नाउ? यस सर। अभी इसके ऊपर हम लोग सम देखते हैं सैलरी के ऊपर। सर सर ये बताइए ना मुझे, हाँ बोलिए। पेन नॉट वैलिड मतलब पेन कब किस केस में वैलिड नहीं होगा सर? रॉन्ग पैन देते हैं ना, 30% रॉन्ग पैन दिया अच्छा तो भी ऐसे 30। जानबूझ के देते हैं कि जान गलती भी अच्छा हो सकता है, 30%? बट जानबूझ के देने वाले लोग ज्यादा है। तो उस केस में सर क्या करेगा? 30% क्या जानबूझ के गलती करते हैं। है? एम्प्लॉयर रहेगा तो 30%, मतलब टीडीएस ऑन सैलरी रहेगा तो 30%, अदरवाइज 20%, मतलब इन शॉर्ट पैन नॉट प्रोवाइडेड का रूल अप्लाई करें। ओके सर, ओके सर। क्योंकि अभी देखो पहले ये सब फैसिलिटी नहीं था, अभी आप रिटर्न में पैन डालोगे तो उसका नाम आता है, बराबर? हाँ सर, पूरा डेटा ही आ जाता है। हाँ सर, अभी तो सभी दैट टाइम ही बताता है कि ये इसके हाँ साथ तो मैच एरर नहीं हो हो गया, रहा है। मतलब तभी आपको पता चल जाता है। पहले कैसे होता था, ये सब लफड़ा था। लाइक आई रिमेम्बर द डेज व्हेन इट वाज हॉरिबल। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल शेयर किया था शायद, कि एक पर्सन ने, कंपनी ने, लिस्टेड कंपनी ने 8th टाइम रिटर्न फाइल किया था टीडीएस का, सेम रिवाइज। तो बीइंग ऑडिटर वी आस्क्ड आर यू श्योर दिस इज फाइनल, तो ही सेड नो। तो नहीं शेयर मेरा किया मेरा था। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस चला था। 8 बार रिवाइज होने के बाद वो क्या गारंटी देगा कि ये फाइनल है कर, बिकॉज तभी ऐसा कुछ, एंड उनका गलती भी नहीं। सी 2-4 हजार रोज आप डेटा देते हो एक क्वार्टर का, तो उसमें आइदर फ्रॉम योर एंड और फ्रॉम द कंपनी साइड मिस्टेक हो सकता है ना पैन का, यस जो अभी कैसे अभी डिटेक्ट हो जाता है इमीडिएट। तभी कुछ डिटेक्शन का चांस ही नहीं था ना। कभी लास्ट दिन आई रिमेम्बर पीपल यूज्ड टू कॉल एंड टेक द पैन ऑन फोन एंड फिर वो डाल के खत्म कर। अभी ये सुनने में या फिर लिखने में या टाइप करने में कुछ एरर हो गया तो गया है ना। हाँ सर, अभी तो एक बार ही डेटाबेस आपका सेव हो जाता है तो वही अभी फ्यूचर में पूरा यूज करते हैं हम लोग। एग्जैक्टली। हाँ एक बार डेटा आ जाता है क्लाइंट का तो फिर एंड दूसरा क्या होता है, भले गलती आपने टाइपिंग में कर भी दी, बट नाउ द सिस्टम डिटेक्ट्स ना कि ये एक तो रॉन्ग है, मतलब ये पैन वैलिड नहीं है, या फिर और किसी पर्सन का पैन दिखाएगा कि ये नाम अलग हाँ दिखेगा, सर। तो आपको पता चल जाता है। ऑलराइट सर नहीं सर, अभी मैं मतलब कोई भी 3 साल के पहला अपने आरपीएफ से पैसा निकालेगा तो टीडीएस कट कर लेगा। यस। ये क्या फालतू। हाँ। अभी विड्रॉ करो ही मत ना। नहीं ऐसा पूछ रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ। सी देखो बेसिकली ये आपके लिए, आपके फायदे के लिए गवर्नमेंट का है, उनको फायदा है नो डाउट, बट पीएफ क्या है पता? एक सेविंग्स है सर, एक तरह की। रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो आप हाँ अभी क्यों विड्रॉ करना चाहते हो आप? मतलब कोई भी XYZ पर्सन, तो अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लाया तो वो सेव होगा ही नहीं ना रिटायरमेंट के लिए। हाँ सर, वो तो बात है फिर लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट पैसा दो, अरेंज करो मेरे लिए। ये तो बराबर नहीं ना, गवर्नमेंट हर एक के लिए कैसे अरेंज कर सकता है? नहीं कर तो बाय इंट्रोड्यूसिंग दीज पॉलिसीज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एंश्योर कि आप खुद के बलबूते पे खड़े रहो। लेकिन मैंने रिटायरमेंट का पैसा बच्चे की शादी में उड़ा दिया तो इट इज योर मिस्टेक, इट इज नॉट ए डिपार्टमेंट्स मिस्टेक, और इट इज नॉट गवर्नमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ यू। So people do it, but then it is up to them. बराबर।
दे शुड नॉट विड्रॉ, एंड ये विड्रॉ ना करे इसके लिए रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट को कुछ क्या, गवर्नमेंट का काम बढ़ता है ना ये करने में, बराबर. उस गवर्नमेंट को क्या मिलने वाला है उससे? हाँ बाबा इतर बरोबर आहे. हाँ. सर मैं कुछ पूछूं क्या? हाँ. सर ये पीपीएफ में जो हम लोग करते हैं सेविंग, तो वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कि हमको फिर ईयरली फिक्स करना पड़ेगा कितना पे करना नहीं, है? पीपीएफ जो है योर वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वो कोई भी Yes, अकाउंट ओपन कर सकता है, उसमें आप एम्प्लॉय होने की जरूरत नहीं। एक दूसरी बात, आपको मिनिमम 500 रुपए एंड मैक्सिमम 1.5 लाख डिपॉजिट करना है। थर्ड, देर इज नो फिक्स्ड अमाउंट। फोर्थ, देर इज नो फिक्स्ड टेन्योर, लाइक ये हर एक साल इसी महीने में भरना है या हर एक महीने में भरना है, ऐसा कुछ नहीं। पूरे साल में आपको मिनिमम 500 रुपया भरना है बस। तो तो एक ये बार सर अपने बहुत 500, अच्छा है। हाँ, तो आपको अगर अच्छा पैसा आपके पास आ गया तो आप उधर रख दो, बिकॉज उसका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है, उसका मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है, एंड आप ऐसे अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। कैसे करने का? 15 साल का पीपीएफ ओपन करने का, उसको 2 बार रिन्यू करने का, तो वो 25 साल हो जाता। तो ऑलमोस्ट मतलब अगर आपने 30 एज में अगर ओपन कर दिया या 20 में कर दिया तो बहुत अच्छा है, बट थोड़ा 30s में कर दिया तो बाय द टाइम यू रिटायर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है। हाँ It is a बराबर। good way. और ये तीनों मतलब ये है ना टैक्स फ्री है ना, तीनों टाइम टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है ना? कंप्लीटली टैक्स फ्री, एंड प्लस आप इन्वेस्ट सॉरी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो डिडक्शन भी है, बराबर सर। तो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर द एसएससी, सर एंड लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ है। हाँ सेफ हाँ सर वो तो है ही। हाँ बोलो। सर लेकिन सिर्फ महीने का 500 सॉरी साल का 500 रुपए डालेंगे तो क्या मिलेगा सर उससे अरे रिटायरमेंट? नहीं नहीं, आप ज्यादा डालो ना, लेकिन वो तो अरे हम तो उन्होंने कितना भी पूछा डालो इज देयर अभी। एनी रिस्ट्रिक्शन। सी, बिजनेसमैन का कैसे होता है, देयर इज नो गारंटी कि इस टाइम मुझे घर परचेज करना है। अभी हाँ घर परचेज करना है तो पूरा पैसा उधर चला जाता है ना, हाँ तो यस सर. इधर कैसे देन इन्वेस्टमेंट एलोकेट करते हो तब उधर 500 रख सकते हो ना वो साल में। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट व्हाट इज द हाँ रिक्वायरमेंट। सी हाँ गवर्नमेंट ये इसके इसके लिए लिए बनता ही है था, रूल। मतलब मैं भी इसलिए ही पूछ रही थी किस साल में कैसा होता है कि कुछ हमने परचेज कर दिया या क्या कोई बड़ी चीज परचेज एग्जैक्टली, कर दी तो उस टाइम हम नहीं कर पाए, तो फिर उसके वजह से ही पूछ रही थी कि ऐसा तो नहीं है ना कि हमको हर साल करना ही है। तो 500 तो बहुत कम अमाउंट कम है, अमाउंट है ना, तब कम। तक देखो गवर्नमेंट को yes, सबका देखना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम 500 रखा। वो भी नहीं रखा तो भी फिर स्कीम का मतलब ही नहीं ना। आप खुद yes, बोल रहे हो कि 500 रुपए और रख के कुछ ऐसा फायदा है, यस यस और ऐसा भी है कि किसी बार आपको लमसम मिल गया, बोनस मिल गया, तो आपने वहां उधर पे डाल दो। सेव कर दिया, तो वो बहुत सही है ना, बहुत अच्छा परफेक्ट, है। आपको सडनली बोनस मिल गया तो उधर डाल दो पैसा, सेफ भी सर है एंड रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो गया, और कुछ करने की जरूरत भी हम्म, नहीं। एंड अगर आपको अच्छे से प्लान करना ही है तो आप साल का 1.5 लाख प्लान कर सकते हो। लोग करते 1.5 लाख, आप इमेजिन करो 25 साल 1.5 लाख, तो कम से कम 60 लाख के आसपास आपके पास अमाउंट आ जाएगा 25 साल, कम से कम, ज्यादा ही आएगा। सर 37,50,000. प्रिंसिपल बोल ये रहा है सर, प्रिंसिपल हुआ ना, हाँ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल. इंटरेस्ट भी आएगा इसमें, इस पे तो जबरदस्त इंटरेस्ट फिर मिलेगा, और कॉस्ट जिस भी देना हिसाब से 25 साल में जो इकोनॉमी पहुंचेगी पड़ेगा। और टाइम प्लेस ऑफ वैल्यू तो जो पहुंचेगा सर, बाप रे, एक नंबर पैसा मिलेगा। सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सर कितना होता है इसके ऊपर? पहले ये अच्छा था, 8.3 था, अभी 7 पॉइंट समथिंग है। भाई वो तो भी अच्छा ही है सर, मतलब तो फिर भी अच्छा है, 7 भी पकड़ लिया तो भी अच्छा ही है। मैं भी चाहता हूँ सर, खुलवाने के लिए। मीन्स फिर ऑप्शन एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करके देखो, फिर आपको सब अच्छा लगेगा। कुठे सर? सर क्यों एसबीआई, सर क्यों सर, क्यों ऐसा सर, क्या क्यों हुआ बोला सर? आपने? एसबीआई के इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम, बहुत ज्यादा है ना, तो अरे आपको वो तो सब अच्छा। एसबीआई को आप इट्स लाइक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो भी उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ऐसे मस्त रेट ऑफर करते हैं 5%, 5.5%। हाँ सर. चलो, हाँ, स्टार्ट करें सम। यस सर। अभी क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट करते हैं पहले। Yes, DK is employed with estimated drawing salary of 75,000 per month. Eligible deduction is 1 lakh. Then he has provided information as under: loss from house property, bank interest, dividend from Reliance.
compute the income, compute the liability of X Limited to deduct tax at source. देखो मतलब सॉरी, आपको समझ में आ रहा है मैंने आपको कंप्यूटेशन पे क्यों एम्फसाइज किया था? अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है। हाँ सर बरोबर। इसमें टीडीएस और सैलरी मर्ज कर दिया। अब ये तो छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखा जाए तो सैलरी का क्वेश्चन है, देखा जाए तो टीडीएस का क्वेश्चन। तो ऐसे वो क्वेश्चन मर्ज कर सकते। कोई भी चीज स्टार्ट कंप्यूटेशन से ही होती है सर। हाँ, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करना पड़ेगा। तो लेट अस डू इट। आप कर रहे हो? मैं साइमल्टेनियसली एक्सेल में करता हूँ, फिर आप आंसर वेरीफाई। यस ठीक सर। है सर।